Hello 4th class, get ready for today's science class. Students, tell me, how do clouds form? Why does it rain? How are clouds and rain related? Students, as you know, we are doing block 16, evaporation and condensation, and today we will learn about the water cycle. So now please open your worksheet S3, water cycle, and read the prescriptions. Let's start reading. Water evaporates from the sea due to the heat of sun. This water rises up in air in form of water vapor. So, high up it condenses to form clouds. So, इसके बेस पे क्या बनता है? Clouds form होते हैं. When the clouds become heavy with water, जब clouds water के साथ बहुत ज़्यादा heavy हो जाते हैं, they burst and the water falls in the form of rain or snow. तो फिर क्या होता है? रेनिंग या फिर स्नोफॉल होता है. रेन वाटर रीच द रिवर एंड देन फ्लोज इनटू द सी अगेन. और फिर क्या होता है? रेन वाटर जो है वो वापस से सी के अंदर फ्लो हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है. दिस सीरीज द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम सी कम्स बैक इनटू द सी. सो इससे क्या होता है? जो वाटर सी से इवेपोरेट हुआ था वही वापस सी में वापस चला जाता है. This series of events keep repeating and is called the water cycle. So ये जो वाटर की जो सीरीज़ है, इवेपोरेशन होना, फिर कंडेंसेशन होना, फिर वापस से दोबारा से जो वाटर वेपोरेट हुआ था दोबारा से सी में वापस मिल जाना, दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. क्योंकि ये जो इवेंट है ये दोबारा से रिपीट होता रहता है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. Now students, here are some questions. Question number 1 is, what happens to sea when the sun shines on it? क्या होता है सी में जब सन जो है उसके ऊपर शाइन करता है. Next one is, what happens to water vapor as it rises in the air? वाटर वेपर के साथ क्या होता है, भाप के साथ क्या होता है जब वो एयर में ऊपर चली जाती है. एंड थर्ड वन इज, what happened to the rain water that had fallen on the ground? रेन वाटर को क्या हो जाता है जो कि ग्राउंड पे फॉल होता है. सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स. व्हेन द सन शाइन्स द सी वाटर इवेपोरेट्स एंड राइज अप इन एयर एज वाटर वेपर. तो क्या होता है जब जो सन शाइन करता है तो उसकी हीट से क्या होता है? द सी वाटर इवेपोरेट्स, जो सी का वाटर है वो इवेपोरेट होता है और ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है वाटर वेपर के रूप में. क्लियर? नेक्स्ट वन इज, high up in the air the water vapor condenses to form small droplets of water. So एयर में ऊपर उड़ते टाइम जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं और उससे स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं वाटर की. क्लियर? क्लाउड्स आर कलेक्शन, यू कैन सी clouds are collection of these droplets of water. The clouds are a collection of water vapor. When the drop became big enough, they fall down as rain. In some places it falls as snow or hails. So जब भी वो जो वाटर क्लाउड्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादा वाटर चला जाता है और वो हैवी हो जाते हैं तो फिर वो जो वाटर उसके ऊपर क्लाउड्स के अंदर है वो रेन के रूप में या फिर स्नो के रूप में या फिर ओलो के रूप में वापस ग्राउंड पे आ जाता है. क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. सो some rainwater is absorbed in ground, the rest goes into drain which reach the rivers or evaporates again. River empty out in the sea. Water which left the sea reaches back to the sea. So जिस water ने sea को छोड़ा था वही water दोबारा से sea में आ गया है. This process is called the water cycle. I hope answers are clear to you all. Now students, tell me, why is this cycle of events called the water cycle? Let's discuss some important facts about this lesson. A cycle is a circle of events that start from the beginnings and repeats. So एक cycle जो होती है वो एक event होता है जो कि beginning से शुरू होकर खुद को ऐसे ही repeat करता रहता है. In the water cycle, the water from the sea comes back to the sea and then the circle of events starts again. So आप देख सकते हो जो वाटर है सी का
वो वापस से कंडेंसेशन होके दोबारा से सी के अंदर आ जाता है. सो ये वाटर साइकिल चलती रहती है, ये इवेंट चलता रहता है. सो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. Now it's time for higher order thinking question. Question is, what would happen if the water cycle stopped for some time? क्या होगा अगर water cycle जो है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाए? Students, the water cycle keeps refilling our rivers. Water cycle से क्या होता है कि ये हमारे rivers को दोबारा से fill करती रहती है. River water is very important for drinking and irrigating. So river water से हम क्या करते हैं, उसको drink भी करते हैं और उससे हम खेती भी करते हैं, इरीगेटिंग में भी वो काम आता है. इफ़ द वाटर साइकिल स्टॉप्ड सून वी वुड हैव नो वाटर इन आर रिवर्स. सो क्या होगा अगर वाटर साइकिल स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो हमारे रिवर्स में कोई भी वाटर नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर कंटेंट बुक. लेसन नंबर 3, द वाटर साइकिल. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अ साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स that are regularly repeated in the same order. The circulation of the earth's water also happens as a cycle. The water evaporates from the water bodies into the atmosphere where it condenses and falls as rain or snow and returns to the water bodies. Clear? कि जो वाटर इवेपोरेट्स होता है वाटर बॉडीज से, वही कंडेंसेशन होके दोबारा से वाटर बॉडीज के अंदर आ जाता है. दिस कंटिन्यूस साइकिल इज नोन एज द वाटर साइकिल. लेसन इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ दीज आर योर कीवर्ड्स: इवेपोरेशन, हेल, स्नो, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन. जो रिपीटेशन होती है उसकी प्री रिपीटेशंस होती हैं. क्लियर? Rain, mist. You have to write these keywords in your notebook. Now please open your worksheet. So question number 1 is, fill in the blanks using the hints from the diagram below. आपको जो डायग्राम दिया गया है उसमें से आपको हिंट देख के और इन फिलिंग द ब्लैंक्स को, जो ये ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है. ए पार्ट इज द डैश हीट्स द ओशियन. ओशियन को कौन हीट करता है? sun. So you will write here sun. Clear? B part is ocean water dash and rise into the air. Ocean water क्या होता है? Evaporates. So you will write here the ocean water evaporates. C part is the dash cools. The water vapors cools and condenses to become droplets which form clouds. Clouds का रूप में वो form हो जाते हैं. Clear? So you will write here cloud. एंड यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? द वाटर वेपर. यहाँ पे आप राइट करोगे वाटर वेपर्स. डी पार्ट इज इफ इनफ वाटर कंडेंसेस द ड्रॉप्स बिकम हैवी इनफ टू फॉल टू द ग्राउंड एज रेन. सो यू विल राइट हियर रेन. ई पार्ट इज रेन वाटर फ्लोज थ्रू डैश बैक इनटू द ओशियन. ओशन में दोबारा रेन वाटर किसके थ्रू आता है? रिवर के थ्रू. सो विल राइट हियर रिवर. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अबाउट द जर्नी ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर. वाटर की ड्रॉप्स की आपको जर्नी राइट डाउन करनी है. सो वाटर ड्रॉप्स की जर्नी सी से शुरू होती है या फिर किसी भी वाटर बॉडी से, जिस भी वाटर बॉडी से वो शुरू होती है. व्हेन द सन हीट्स, the water from the water bodies evaporates and rise up in the air as water vapor. High up in the air, the water vapor condenses to form droplets of water. Clouds are collecting of these droplets of water. The clouds are a collection of water vapors. When the drops became big enough, they fall down as rain, as snow or hail. Some rainwater is absorbed in the ground, the rest goes into drains which reach the rivers or evaporates again. Rivers empty out in the sea. So इसी बेस पे जो सी का अगर वाटर लिया गया है तो जो रिवर्स हैं वो दोबारा से सी के अंदर जाएंगी. Water which left the sea reaches back to the sea. So जिस वाटर ने सी को छोड़ा था वो दोबारा से सी के अंदर आ गया है या फिर वाटर बॉडीज के अंदर आ गया है. Clear? This process is called the water cycle of water. Clear? So you have to complete this worksheet. Now you have to complete practice question number 5 and 6.
5 इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल, आपको वाटर साइकिल का एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ रेन वाटर रीच द सी, सो रेन वाटर सी में वापस से कैसे पहुंचता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 and 6। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।